Hello everyone. Now in our mechanics of solid, today we are going to see our next chapter, plane truss. Before we going to see our next chapter, in a previous video we saw that support reaction. Now in that chapter we saw different type of beam, different type of support and different type of reaction at the support. Now first of all, what is type of beam? So there are different type of beam like simply supported beam, overhanging beam, fixed beam, cantilever beam, prop cantilever beam and continuous beam. Then after we saw types of load. So there are different type of load like point load or a concentrated load, uniformly distributed load, uniformly varying load. So there are the different type of load. Now then after we saw types of support. So different type of support are simple support, roller support, hinge support and fixed support. Then we saw how to take a moment of different type of load. So consider clockwise moment is positive, anti-clockwise moment is negative. Now our next chapter is plane truss. Now some content are included in this chapter. The first is introduction, second is assumption in the theory of plane truss, stability and determinacy of trusses, type of trusses as per stability, external forces on truss, internal resistance in the member, method of analysis of truss and zero force member, and some example based on it. Now first of all, what is introduction? So frame and trusses are the structure consisting of the बार, रोड्स, एंगल सेक्शन, चैनल सेक्शन एक्सेट्रा. ठीक है. जो फ्रेम और ट्रस होगा वो कैसे कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे? बाय यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ बार, रोड्स, एंगल सेक्शन एंड चैनल सेक्शन. पिन, हिंज और रिवेटेड और वेल्डर टुगेदर फॉर्म अ रिजिड स्ट्रक्चर. ठीक है. जो ये रॉड है, बार है, एंगल सेक्शन है, चैनल सेक्शन है, उसको हम कैसे जॉइंट करेंगे? बाय यूजिंग पिन जॉइंट, हिंज जॉइंट, रिवेटेड और वेल्डिंग यूज़ करके डिफरेंट टाइप ऑफ बार, रोड को हम टुगेदर करके हम एक स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे, रिजिड स्ट्रक्चर. द फंक्शन ऑफ ट्रस और अ फ्रेम इज टू सपोर्ट लोड एंड ट्रांसमिट द सेम टू द सपोर्ट थ्रू द मेंबर ऑफ द ट्रस और अ फ्रेम. फंक्शन क्या है ट्रस का? वो क्या करेगा? लोड को सपोर्ट देगा एंड लोड को ट्रांसमिट करेगा स्ट्रक्चरल मेंबर पे. ठीक है. सो इट इज़ वन ऑफ द ट्रस. नाउ हियर सम डिफरेंस बिटवीन ट्रस एंड फ्रेम. व्हाट इज ट्रस एंड व्हाट इज फ्रेम? So truss consists of a uniform member, circular section, angle section, channel section, etc. joined together and their ends by riveting or welding and constructed to support loads. ट्रस क्या है? एक यूनिफॉर्म मेंबर है. कौन कौन से मेंबर आएंगे उसमें? सर्कुलर सेक्शन, एंगल सेक्शन एंड चैनल सेक्शन. उसको हम जॉइंट करेंगे एक दूसरे से बाय यूजिंग रिवेटिंग और वेल्डिंग एंड सपोर्ट कंस्ट्रक्ट करेंगे. सो इट इज़ ट्रस. And what is frame? The frame is also consist of a uniform member. Frame is also uniform member, circular, angle और channel section. Joint together their end by riveting और welding. फ्रेम में ओनली हम रिवेट प्रोवाइड करेंगे और वेल्डिंग प्रोवाइड करेंगे. सो इट इज़ फ्रेम. इन अ ट्रस फोर्स आर अप्लाई ओनली एट द जॉइंट. ट्रस में क्या होगा? जो फोर्स अप्लाई होगा वो जॉइंट पे होगा. एंड वाइस वर्सा इन अ फ्रेम फोर्स में बी एनीवेयर ऑन द मेंबर. कहीं पे भी फोर्स एक्ट होगा इन द फ्रेम मेंबर. इन अ ट्रस ईच मेंबर इज एक्टेड अपॉन बाय टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सिंग हैविंग लाइन ऑफ एक्शन अलोंग द सेंटर ऑफ द मेंबर. एवरी मेंबर ऑफ ट्रस इज टू फोर्स मेंबर. ठीक है. जो मेंबर होगा, कौन कौन से ट्रस मेंबर होगा? सो इट इज़ बार, रोड एंड एंगल सेक्शन, चैनल सेक्शन. वो क्या होगा? इक्वल एंड अपोजिट फोर्स हैविंग अ लाइन ऑफ एक्शन अलोंग द सेंटर ऑफ द मेंबर. जो उस पर फोर्स आएगा वो क्या होगा? इक्वल, अपोजिट. एंड जो उसकी लाइन ऑफ एक्शन होगी वो किस पे होगी? सेंटर ऑफ द मेंबर. सो एवरी मेंबर ऑफ ट्रस इज अ टू फोर्स मेंबर. ठीक है. इक्वल एंड अपोजिट એટલે कपल फॉर्म करेगा
So it is two force member. In a frame, one or more than member of frame is subject to more than two forces. ठीक है, फ्रेम में क्या होगा, टू से ज़्यादा फोर्सेस एक्ट होंगे. सो मल्टी फोर्स मेंबर, फ्रेम इज अ मल्टी फोर्स मेंबर. Truss is fully constrained stationary structure and a frame is also fully constrained stationary structure. ठीक है, ट्रस क्या होगा, फुल्ली कंस्टेंट स्टेशनरी स्ट्रक्चर होगा. वाइस वर्सा फ्रेम इज ऑल्सो फुल्ली कॉन्स्टेंट स्टेशनरी मेंबर. ठीक है, सो आप फिगर में देख सकते हो. ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल मेंबर, ट्रस मेंबर लाइक रोड और चैनल सेक्शन, एंगल सेक्शन एक दूसरे से अटैच करके हम ट्रस फॉर्म कर सकते हैं बाय यूजिंग रिवेटिंग, वेल्डिंग. ठीक है, और पिन जॉइंट. इन अ फ्रेम it is also structural member joined together and make a frame. Now use of truss. ट्रस का यूज़ कहाँ पे होगा, सो इट इज़ यूज्ड एज अ रूफ ऑफ फैक्ट्री सेट. फैक्ट्री सेट को बनाने के लिए यूज़फुल होगा. देन वेयर हाउस कंस्ट्रक्ट करने के लिए यूज़ होगा. रेलवे प्लेटफॉर्म, ठीक है, ऑब्वियसली रेलवे प्लेटफॉर्म पे ट्रस यूज़ होगा. गैरेज सेट, किसी गैरेज का सेट बनाना हो तो हम ट्रस यूज़ करेंगे. ट्रांसमिशन टावर, देन आफ्टर crane truss, bridge truss, sports stadium, it is truss structural member. Now truss detail. So here are some truss detail given in figure. आप फिगर में देख सकते हो. here one is simple support and one is roller support. ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है it is simple support. So there are two reaction, vertical and horizontal. In a roller support here vertical reaction only. ठीक है, जो स्ट्रक्चरल मेंबर यहाँ पे दिखाया गया है इट इज़ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दी मेंबर. वो क्या होगा, टेंशन या कंप्रेशन में. लोड एक्टिंग एंड जॉइंट ऑनली. यहाँ पे जो लोड आएगा वो लोड कहाँ पे आएगा, जॉइंट पे. एंड ऑल दी जॉइंट आर पिन जॉइंट. जो यहाँ पे जो जॉइंट दिया गया है, ठीक है, सो इट इज़ ऑल जॉइंट आर पिन जॉइंट. सो इट इज़ द ट्रस डिटेल. Now next is very most important theory, assumption in the theory of plane truss. Some assumption are for a plane truss. All the joint are pin joint. Truss में जो joint होगा, so all the joint are pin joint. Pin joint होगा. External force are acting at the joint only. जो external force होगा, compression या tension, वो कहाँ पे act होगा, only joint पे. Member are subjected to एक्सेल, टेंशन और कंप्रेशन. ठीक है, एक्सेल कंप्रेशन आएगा, टेंशन आएगा. जो स्ट्रक्चरल मेंबर है उस पर जो फोर्स आएगा कंप्रेशन टेंशन में, वो क्या होगा, एक्सेल टेंशन और एक्सेल कंप्रेशन. मेंबर ऑफ ट्रस आर स्लेंडर एंड स्ट्रेट. ठीक है, स्लेंडर और स्ट्रेट होगा. जो स्ट्रक्चरल मेंबर होगा, सॉरी ट्रस मेंबर होगा, वो क्या होगा, स्लेंडर एंड स्ट्रेट. सेल्फ वेट ऑफ द मेंबर इज निगलेक्टेड. सेल्फ वेट होगा वो निगलेक्टेड होगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ कंप्रेशन एंड व्हाट इज़ टेंशन. सपोज ये हमारा स्ट्रक्चरल मेंबर है, उसको हम पुल करेंगे. ठीक है, तो उसमें क्या आएगा, टेंशन. एंड वाइस वर्सा उसको हम पुश करेंगे, पुश की वजह से उसका वॉल्यूम चेंज होगा. सो इट इज़ कंप्रेशन. ठीक है, सो इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टेंशन एंड कंप्रेशन. नाउ स्टेबिलिटी एंड डिटर्मिनेंसी ऑफ ट्रसेस. ठीक है, the reaction and unknown forces in member are to be determined by considering the equilibrium of truss as a whole as well as each joint separately. ठीक है, जो रिएक्शन आएगा और जो अननोन फोर्स होगा, सपोज कि हमारे पास कोई स्ट्रक्चरल मेंबर है लाइक दिस ट्रस मेंबर, जो उस पर जो फोर्स आएगा, ठीक है, एनी टाइप ऑफ फोर्स आएगा, वो हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, जो इक्विलिब्रियम है. ठीक है, जो इक्विलिब्रियम है उसको हम जॉइंट सेपरेटली पर्टिकुलर स्ट्रक्चरल मेंबर पे हम लोड काउंट करके हम इक्विलिब्रियम फोर्स उस पर डिटरमाइन करेंगे. द फोर्सेस इन द फ्री बॉडी डायग्राम, ईच जॉइंट मस्ट बी कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम. ठीक है, जो फोर्स सिस्टम, जो फोर्स आएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे ट्रस का, एट दैट टाइम क्या करेंगे, जो फोर्स सिस्टम होगा, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इट इज़ कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम.
Therefore, each joint is considered as particle and force acting on a joint is considered as a concurrent forces. Now, first of all, what is concurrent forces? In a previous chapter we saw that different type of concurrent forces. Suppose कि हमारे पास कोई प्लेन है, उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्स एक्ट होगा, ठीक है, एक ही प्लेन में होगा, दे डू नॉट मीट एट अ वन पॉइंट, किसी पॉइंट पे मीट नहीं होगा, बट लाइज ऑन अ सेम प्लेन, सो इट इज़ कॉल्ड concurrent forces. Now consider the each joint is in equilibrium. ठीक है, हमें कंसिडर करना है कि जो जॉइंट है, each joint is in equilibrium. So to equilibrium equation are available. कौन कौन से इक्विलिब्रियम फोर्स आएंगे? एक्स एक्सिस पे फोर्स एक्ट होगा और वाई एक्सिस पे फोर्स होगा. दिस इज एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. So summation of fx equal to 0 and summation fy equal to 0. ठीक है. So hence if j member of joint are present, 2j equation are available. Now statically determinate of truss. ठीक है. स्टेटिकली हम कैसे डिटरमाइन करेंगे ट्रस को? वो दिया गया है. सो अ ट्रस इन विच अननोन कैन बी डिटरमाइंड बाय इक्विलिब्रियम इक्वेशन अलॉन. ठीक है. जो ट्रस के अंदर जो फोर्स आएगा, अननोन, उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, डिटरमाइन करेंगे स्टेटिकली. सो अ ट्रस इन विच अननोन कैन बी डिटरमाइंड बाय इक्विलिब्रियम इक्वेशन अलॉन इज कॉल्ड स्टेटिकली डिटरमिनेट ट्रस. So the necessary condition for statically determinate truss is m equal to twice j minus r. Here equation is m is equal to twice j minus r, where m equal to number of member. How much member in the truss? So it is number of member, a number of force in member, j equal to number of joint और r equal to number of reaction. ये कैसे हम फाइंड आउट करेंगे? सपोज हमारे पास कोई ट्रस है लाइक दिस. ठीक है. सपोज हमारे पास दो जॉइंट है, इट इज सिंपल सपोर्ट और रोलर सपोर्ट. यहाँ पे रोलर सपोर्ट है, एक ट्रस है हमारे पास. ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेंबर, कितने मेंबर है वो हम फाइंड करेंगे. तो हियर फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 एंड 6 मेंबर आर देयर. देन जॉइंट कितना है? 1 जॉइंट, 2 3 4 एंड 5 जॉइंट आर देयर. एंड रिएक्शन कैसे फाइंड करेंगे? सिंपल सपोर्ट होगा जो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, एंड रोलर सपोर्ट होगा इट इज़ ओनली वर्टिकल. सो रिएक्शन आर देयर इज इक्वल टू 3. तो इन दिस वे वी कैन फाइंड m इक्वल टू ट्वाइस j माइनस r. m इक्वल टू number of member, j equal to number of joint, r equal to number of reaction. So the above equation may be written as m plus r. ठीक है. m equal to twice j minus r. So m plus r is equal to twice j. ऐसे हम लिख सकते हैं this equation को. So where m plus r equal to total number of unknown and twice j equal to number of available equation of static. Now next is परफेक्ट ट्रस. अब परफेक्ट ट्रस किसे बोलेंगे? सो ट्रस विच सेटिस्फाइज द नेसेसरी कंडीशन. ठीक है. जो ट्रस, ये जो कंडीशन है, क्या कंडीशन है? m इक्वल टू ट्वाइस j माइनस 3 इज कॉल्ड परफेक्ट ट्रस. परफेक्ट ट्रस किसे बोलेंगे? जो कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा. m इक्वल टू ट्वाइस j माइनस r, इट इज़ परफेक्ट ट्रस. इट इज़ मेड ऑफ फर्स्ट सफिशिएंट मेंबर टू कीप द फ्रेम इन इक्विलिब्रियम. Now stable truss, a truss which as a whole will remain in static equilibrium and will not slide or collapse when loaded, it is called stable truss. लोड आएगा एट द टाइम जो ट्रस स्टेबल रहेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्टेबल ट्रस. सो परफेक्ट ट्रस इज ऑलवेज डिटरमाइन एंड स्टेबल. परफेक्ट ट्रस होगा, कंडीशन सेटिस्फाइड होगी m इक्वल टू ट्वाइस j माइनस 3, तो इट इज़ ऑलवेज डिटरमिनेट एंड स्टेबल. वो डिटरमिनेट और स्टेबल होगा. Now type of truss. So there are, as per stability, two types of truss are perfect truss and imperfect truss.
So here equation for perfect trust is equal to m equal to twice j minus r, and imperfect trust m is not equal to twice j minus r. So in imperfect trust there are also two types, deficient trust and redundant trust. So in deficient trust m less than twice j minus r, redundant trust m greater than twice j minus r. So here it is types of trusts. Now what is perfect trust? So a trust which satisfies necessary condition m equal to twice j minus r is called perfect trust. यहाँ पे एग्जाम्पल लिया गया है. इन दिस एग्जाम्पल मेंबर कितने हैं? m इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5. ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5, m इक्वल टू 5. r इक्वल टू रिएक्शन क्या आएगा यहाँ पे? वर्टिकल होरिजन सिंपल सपोर्ट पे, रोलर पे वर्टिकल. सो इट इज़ r इक्वल टू 3. जॉइंट कितने हैं? 1 2 3 एंड 4. हियर 4 जॉइंट आर देयर. सो नंबर ऑफ अननोन इक्वल टू m plus r equal to 5 plus 3 is equal to 8. So number of equilibrium condition is equal to twice j 2 into 8. 2 into joint कितने हैं? 4. So 2 into 4 it equal to 8. So m plus r equal to twice j. Equation satisfied हो गई. So truss is perfect truss. So it is perfect truss is always determined and stable. So it is the perfect truss. So it is type of truss, perfect truss and imperfect truss.